Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start our next lecture. This lecture is going to be the 10th lecture. Okay. So in this lecture we are going to discuss about different kind of terminologies which are being used in medical billing and insurance healthcare system of the USA. So these kind of terminologies would be very crucial while you are in an interview. So they can ask different kind of terminologies to you, like what is the EOB, what is the out of network provider, what is HMO plan, what is PPO plan. So there are different kind of things they can ask to you guys. So you guys have to be prepared for these kind of terminologies. So I'm going to discuss all these kind of terminologies which are very crucial and which can be asked during the interview. Okay, so here we go. Are going to the, this is the 10th lecture. Okay, and we are moving to this one. Okay, so here we go. The first one is account number. Okay, so in medical billing term, what is the account number? Okay, so in medical billing, an account number is a unique identifier assigned to a patient's account for tracking and managing their medical services, charges and payments within a healthcare provider system. So ठीक है, मीन्स मेडिकल के अंदर एक अकाउंट नंबर किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, मीन्स एक स्पेसिफिक आइडेंटिफायर होता है कि हाँ भाई ये इसका अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर से इस पेशेंट्स को हम पहचानते होंगे. ठीक है, जो हमारे पास मेडिकल बिलिंग के सॉफ्टवेयर डिफरेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक उनको एक आईडी दी जाती है कि हम जब भी कोई पेशेंट लाइक ये है कि इस पेशेंट को सर्च करेंगे तो हमारे पास वो आईडी होनी चाहिए. ठीक है, और उस आईडी को देते ही उस पेशेंट का सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा. लाइक वी कैन सी द डेमोग्राफिक पोर्शन ऑफ हिम एज वेल. ठीक है, और हर एज वेल. ओके, सो इसके अलावा ये है कि और भी जितनी भी उसकी डिटेल्स होंगी, लाइक ये है कि कितना उसके पास पेंडिंग बैलेंस है हमारा. ठीक है, इसके अलावा क्या उसकी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसके क्या मीन्स डिफरेंट जो भी कैटेगरीज होंगी, कितनी हम उसके क्लेम्स हमारे पास आए हैं, हम उसके क्लेम सेंड कर चुके हैं, और इसके अलावा और तमाम इन्फॉर्मेशन. ठीक है, वो उसके उस अकाउंट नंबर से लिंक्ड होती है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट अकाउंट नंबर. ओके, so what is the admission date or the admit date? Okay, the admission date also refer to the as the admit date. Means admission date को admit date भी कहते हैं. लाइक ये है कि किसी दिन the day when a patient is admitted to the hospital. ठीक है, that date is going to be called as the admission date or admit date. Is the specific date on which a patient is officially admitted to a healthcare facility such as hospital, clinic or rehabilitation center. As I have mentioned that when a patient is admitted to a rehabilitation center, to hospital or to a somewhere else facility, so that's date, the specific date is going to be the admission date. Okay, so next देखते हैं हमारे पास क्या है. Authorization number. I guess we have already read about this authorization number, so we are going to again memorize this one. Okay, an authorization number is a unique code or reference number provided by a healthcare insurance company. Means एक specific number होता है. ठीक है, जो कि हेल्थ केयर जो आपकी इंश्योरेंस होती है कोई भी होगी. ठीक है, तो आपको एक हेल्थ के एक स्पेसिफिक और यूनिक कोड प्रोवाइड करती है. व्हाट इज दैट कोड देखते हैं. This code is issued after the insurance company review a request for a specific medical service, procedure, test or treatment. Means ये उस वक्त आप लोगों को असाइन किया जाता है जब कोई एक सपोज ये है कि एक ऐसी सर्विस थी जो आपके इंश्योरेंस प्लान के अंदर नहीं है. ठीक है, एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज गोइंग टू रेंडर दैट सर्विस. सो उसके लिए क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि आप लोगों को सबसे पहले एक अथोराइजेशन नंबर रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, ये नंबर जब आप लोगों को पास आ जाता है, लाइक है जो बिलिंग कंपनीज होती हैं बेसिकली. ठीक है, व्हेन दे आर गोइंग टू गेट दैट अथोराइजेशन नंबर, देन दे आर अलाउड टू क्लेम दैट बिल टू इंश्योरेंस. Okay, the purpose of an authorization number is to confirm that the insurance company has approved coverage for the requested healthcare service. So इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस यही होता है कि हाँ भी जब ये है कि आपको पास authorization number आ जाता है, then you are allowed to perform those services which are going to be covered under the insurance plan of that particular member. Okay, so this is the authorization number. Next, what we see, what we have over here. Okay, so it's CHAMP VA. What is CHAMP VA? Okay, CHAMP VA, which stands for Civilian Health and Medical Program of the Department of Veterans Affairs. ठीक है, चैम्प वी मीन्स क्या, इसकी जो एब्रीविएशन है वो क्या है, वो ये है कि सिविलियन हेल्थ एंड मेडिकल प्रोग्राम
of the Department of Veterinary Affairs. मीन्स ये होता क्या है, लेट्स सी, इज अ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, बहुत ही वसी हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है, ऑफर्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी अफेयर्स। ठीक है, यूएस का जो वेटरनरी अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है वो इसको क्या कहते हैं, मीन्स चैम्पिए के अंडर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर बेनिफिट्स टू द एलिजिबल डिपेंडेंट्स ऑफ सर्टेन वेटरन्स एंड एक्टिव duty service members who are permanently and totally disabled due to a service related injury or condition. मीन्स बेसिकली वेटरन्स उनको कहा जाता है यूएस के अंदर, मीन्स कोई एयर के अंदर, कोई सिविल सर्विस के अंदर, कोई मिलिट्री के अंदर बेसिकली, या नेवल के अंदर। मीन्स ये तीन उन्होंने कैटेगरीज दी हैं। ठीक है, एक्टिव मिलिट्री पर्सन हो, नेवल हो, ठीक है, या कि इसके अंदर एयर सर्विस के अंदर हो। तो जब इनके अंदर से किसी को मीन्स कोई डिसेबल्ड हो जाते हैं, ठीक है, या उनके फैमिली मेम्बर्स के अंदर से कोई डिसेबल हो जाता है, या सम सॉर्ट ऑफ कोई इंजरी उनको हो जाती है, देन दे आर गोइंग टू कवर ऑल द हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और हेल्थ केयर services, okay, on behalf of that particular member. ठीक है, it provides healthcare benefits to eligible dependents of certain veterans and active duty service members. ठीक है, तो मीन्स चैम्प वी ए के अंदर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, यूएसए का। ठीक है, इसके अंदर ये है कि वो मेंबर्स आते हैं जो बेसिकली वेटरन मीन्स वेटरन, वो वेटरन्स होते हैं जो मिलिट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, नेवल के अंदर काम कर रहे होते हैं, और दे आर वर्किंग इन द एयर। ओके, सो एंड दे आर means they are now not the part of that naval service or military service, but they are discharged। ओके, वो मीन्स वहाँ से डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ देयर डिसेबिलिटी और इंजरी कंडीशंस। ओके, सो इन बिहाफ के ऊपर क्या कहते हैं, जो यूएस का डिपार्टमेंट होता है, दैट इज गोइंग टू हेल्प देम इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, वेन एवर दे आर गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, any kind of a healthcare related services, so they are going to assist them financially. Okay, so this is champ va. Okay, what we see that what we have next, it's CMS 1500 form. Means what is CMS 1500 form? The CMS 1500 form, also known as the health insurance claim form, means the health insurance claim form bhi hota hai, is a standard paper claim form used by healthcare providers and medical billing professionals. Means ये healthcare providers use करते हैं, ठीक है, medical billing companies use करती हैं, ठीक है। Why they are going to use this one? Medical billing professionals to submit claims for reimbursements to insurance carriers in the United States. Means United States के अंदर एक specific एक CMS 1500 फॉर्म होता है, उसके ऊपर पेशेंट का जैसे डाटा लिखा हुआ होता है, उसका नेम, एड्रेस, और कौन सी कोडिंग की जा रही होती है, कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए थे, कौन सी डायग्नोसिस कोड्स थे, कौन से मॉडिफायर्स यूज़ किए गए हैं, डेट ऑफ सर्विस क्या थी, कहाँ पे परफॉर्म किया गया है, रेंडरिंग प्रोवाइडर कौन सा था, ऑफरिंग प्रोवाइडर कौन सा था, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, किस फैसिलिटी के अंदर टेस्टिंग हुई है। मीन्स ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सो दैट इज़ इनक्लोज्ड इन दैट्स 1500 CMS form. Okay, this form is used for billing medical services provided to patients covered under various types of healthcare insurance plans, including Medicare, Medicaid, and private health इंश्योरेंसेस। मीन्स ये जो बेसिकली CMS 1500 का फॉर्म होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मीन्स काफ़ी सारी इंश्योरेंसेस जो होती हैं गवर्नमेंट की हैं, या उसके अलावा कमर्शियल जो हैं प्राइवेट हो गई, ठीक है, तो दे आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्म टू सबमिट द क्लेम्स टू इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, मेडिकल बिलिंग बेसिकली कंपनीज जो होती हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करती हैं। Okay, so this was the 1500 CMS form, and I have also attached a picture of this one as a sample. So this is also taken from Google. So आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक ये के ऊपर मीन्स इंश्योरेंस कौन सी है, मेडिकेयर, मेडिकेड, ट्राईकेयर, चैम्प वीए, ग्रुप हेल्थ प्लान, ठीक है। इसके अलावा कोई और हो सकता है, इंश्योर्ड आईडी नंबर क्या है, इंश्योर्ड नेम, इंश्योर्ड एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ठीक है, पेशेंट का एड्रेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं डेट ऑफ करंट इलनेस इंजरी, ओके, सो नेम ऑफ रेफरिंग प्रोवाइडर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एडिशनल क्लेम इन्फॉर्मेशन, डायग्नोसिस और नेचर ऑफ इलनेस, ठीक है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मींस एक क्लेम बनाने के टाइम पे जो यूज़ हो रही होती है, बेसिकली दिस इज़ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म। मींस क्लेम के ऊपर सपोज एक क्लेम बनाना है, तो उसके लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम किस चीज़ के ऊपर इंसर्ट करते हैं, वो इस फॉर्म के ऊपर लगाई जाती है। ये फॉर्म बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज को सेंड किए जाते हैं, सो दे रिव्यू दोज फॉर्म्स एंड पे द बिल्स। ओके, okay, so what is the coordination of benefits? Means coordination of benefits क्या होती है? Coordination of benefits is a process used in the health insurance industry to determine how multiple insurance plans should work together when a person is covered by more than one insurance policy. सो मीन्स बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर यूएसए के अंदर मेंबर्स की एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं। मीन्स किसी के पास एक इंश्योरेंस है, दैट इज़ द प्राइमरी वन, इफ़ दैट मेंबर हैज़ अ सेकेंडरी वन, मीन्स
दूसरी उसकी इंश्योरेंस है तो वो कौन सी होगी, सेकेंडरी उसकी इंश्योरेंस होगी। तो ये जो जितनी भी इंश्योरेंस होती है इनके आपस के अंदर कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ठीक है। मींस एक क्लेम जो सेंड किया है पहले वो प्राइमरी के पास जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी को भी इन्फॉर्म करेगी कि हाँ भी मैंने इतनी अलाउड अमाउंट थी, इसका इतना पार्ट मैंने पे किया है। नाउ व्हाट आर द चार्जेस दैट आर बीइंग पेंडिंग, मींस कितने पेंडिंग रहते हैं, देन दैट गोज टू द सेकेंडरी वन, तो सेकेंडरी उसको फिर पे करती है। मींस ये इंश्योरेंसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है, दे आर लिंक टुगेदर इन अ नेटवर्क एंड दे नो व्हाट इज प्राइमरी बीइंग पेड एंड व्हाट इज गोइंग टू they have to pay. Okay, the goal of coordination of benefits is to ensure that the combined benefits from multiple insurance plans do not exceed the total amount of expenses incurred for a healthcare service. Means basically इसका क्या होता है फायदा, कि जब एक प्राइमरी ने पे कर दिया है, सेकेंडरी ने पे कर दिया है, ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हाँ भी जब एक प्राइमरी पे करी है एक एग्जैक्ट या सेम अमाउंट, मीन्स उसने पे कर दी है एक स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, तो ये है कि इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हाँ भी सेकेंडरी ने जो अब पे करना है वो मीन्स ये ना हो कि हाँ भी दोनों की कलेक्टिव अमाउंट्स जो हैं वो मीन्स इतनी इंक्रीज हो जाएं कि हाँ भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट जो चल रही होती है वो ख़राब हो, ठीक है। मीन्स एक स्पेसिफिक जो सर्विसेज दी गई हैं उसका जितने जितना जिस इंश्योरेंस का पार्ट बनता था वो उतना ही पे करेगी, जितने वो कवरेज या उसके बेनिफिट्स होते हैं, दैट इंश्योरेंस इज गोइंग टू पे फॉर दोज काइंड ऑफ सर्विसेज। ओके, मीन्स ये ना हो कि हाँ भी पहले ने इतने ज़्यादा पे कर दिए और दूसरे ने भी बहुत ज़्यादा पे कर दिए हैं, फिर इसके बाद यह कि इशू हो जाता है कि हाँ भी फिर उनको रिफंड करनी पड़ती हैं पेमेंट्स। सो they are coordinated in a network and they know what is primary going to pay and what they have to pay, like the secondary one. Okay, this process helps avoid overpayments and ensures that claims are paid accurately and fairly. As I have mentioned that लाइक एक ओवर पेमेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से ये है कि फिर रीइंबर मींस उनको रिफंड करनी पड़ती हैं पेमेंट्स। सो उससे बेहतर यही है कि हाँ भी मींस कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स हो, पता हो कि हाँ प्राइमरी ने कितना पे किया है, सेकेंडरी ने कितना पे किया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड let's see what is CPT, current procedural terminology code. We have also read this one in the previous lectures, but I am going to discuss because this is an important thing. Okay, द करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी सीपीटी कोड मीन्स जो होता है ये 5 डिजिट का होता है बेसिकली, ठीक है। 5 डिजिट कोड इज अ स्टैंडर्डाइज कोडिंग सिस्टम यूज टू describe and report medical procedures and services performed by healthcare professionals. मीन्स कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या रेंडरिंग प्रोवाइडर है, कोई भी अगर वो प्रोसीजर या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज गोइंग टू बी शोन इन दोज 5 डिजिट्स। मीन्स कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, सो उसको हम कैसे जाहिर करेंगे, विद दिस 5 codes. Okay, 5 digit code. CPT code cover a wide range of medical services including medical, उसके अंदर आ जाता है surgical, diagnostics and preventive services. Each code corresponds to a specific procedure, test, treatment or service that a healthcare provider may perform. Means ये specific services इसके अंदर perform हो जाती हैं, medical आ जाती है, ठीक है, surgical, diagnostic, preventive, कोई भी अगर services perform की गई हैं, and those all services are going to be shown in this CPT code. Okay, in form of these CPT code. यहाँ पर बहुत ही vast variety of CPT codes है क्योंकि जितनी भी सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं तो वो भी लातादाद हैं, काउंटलेस हैं, ठीक है। सो दीज कोड्स आर आल्सो हैज़ टू बी इन दोज काइंड ऑफ नंबर्स बिकॉज दे आर गोइंग टू बी शोन इंस्टेड ऑफ दोज सर्विसेज विच आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज गोइंग टू बी रेंडर्ड। ओके, सो एग्जांपल के तौर पर 88305, 88307, 88313, 88341, 342, इस तरीके से बहुत सारी कोडिंग होती है। Okay, so the next is date of service. The date of service क्या होती है is a fundamental element in medical billing and coding that refers to a specific date on which a healthcare service or procedure was performed to a patient. Means date of service बहुत ही fundamental, बहुत ही important होती है। अगर ये चीज़ गलत हो जाती है then your claim is going to be denied at any cost. Okay, so डेट ऑफ सर्विस क्या होती है, डेट ऑफ सर्विस वो सर्विस डेट होती है, मीन्स वो डेट होती है जिसके ऊपर एक प्रोवाइडर वो सर्विसेज मीन्स किसने कोई भी सर्विस परफॉर्म की है, ठीक है, देन दैट प्रोवाइडर इज गोइंग टू मेंशन दैट डेट ऑफ सर्विस कि हाँ भी इस दिन मैंने इस पेशेंट को ये सर्विस प्रोवाइड की थी, वो जो डेट होती है उसको हम कहते हैं डेट ऑफ सर्विस। द डेट ऑफ सर्विस इज क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटिंग एंड बिलिंग फॉर मेडिकल सर्विसेज। इट इज यूज टू ट्रैक व्हेन अ पर्टिकुलर हेल्थ केयर सर्विस वाज परफॉर्म्ड एंड टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट बिलिंग कोड एंड रिइंबर्समेंट्स। तो ये बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, because means when AR team is going to follow up on different claims, those are in outstanding status. Okay, when they are going to call the insurance companies, then they are going to mention that date of service while getting the status of those outstanding claims.
ओके। सो मीन्स ये है कि जब भी कोई क्लेम एक मीन्स इंश्योरेंस को हमने भेजा है तो दे ऑल्सो रिक्वायर द insurance companies, they ask you that what is the date of service and what is the billed amount. So you have to memorize that one because that is also mentioned on the claim which you have sent to the insurance company. So that date of service should be fact, that डेट ऑफ सर्विस शुड बी एक्यूरेट, बिकॉज अगर आप डेट ऑफ सर्विस एक्यूरेट नहीं है, डेट ऑफ सर्विस गलत है एंड बिल्ड अमाउंट आपके पास बेशक ठीक हो, लेकिन डेट ऑफ सर्विस अगर आपके पास एक दिन की भी आगे पीछे हो जाती है, देन दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द स्टेटस ऑफ दैट क्लेम. Okay, so that must be in a accurate and correct manner. So this is all about the date of service. Okay, what's next? It's durable medical equipment, DME. So durable medical equipment refers to a medical equipment, devices and supplies that are designed for repeated use and are primarily used for medical purposes to improve a person's quality of life due to a medical condition or injury. Means durable medical equipments जो होते हैं, ये डॉक्टर्स जो होते हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं, ये बेसिकली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि हाँ भी आप लोग ये चीज़ें ले लें बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज़ दैट वन इन योर डेली लाइफ ड्यू टू अ सर्टेन कंडीशंस. मीन्स ये है कि किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, किसी को क्रचिस मीन्स बैसाखी की ज़रूरत होती है, ठीक है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है. सम टाइम दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट kind of a conditions like suffocation conditions, so that oxygen cylinders must be at their home. Okay, so in those kind of a conditions there are some certain equipments which are going to be called as durable medical equipments. Okay, and they are going to be referred by your healthcare provider. Okay, DME is prescribed by a healthcare provider and is intended for use at home or in other non-hospital settings. ठीक है, मीन्स ये आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो ही आपको ये चीज़ें रिकमेंड करता है. एग्जांपल्स में व्हील चेयर्स, क्रचेज एंड ब्लड ग्लूकोज मोनीटर्स. मीन्स ये है कि ब्लड ग्लूकोज को मोनीटर करने के लिए जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं वो भी इस DME के अंदर आ जाती हैं. Okay, what's next? It's explanation of benefits. We have already read about the ERA, EOB. Okay, ERA is an electronic one piece of paper. Okay, and the EOB is a paper in the paper form that we are getting from the insurance company. Okay, an explanation of benefits is a document that is provided by a health insurance companies to policy holders and patients. It explains how a claim for medical services was processed and how the benefits were applied. मीन इसके अंदर यही है कि हाँ भी आपकी अलाउड अमाउंट कितनी थी, आप इंश्योरेंस ने कितना पे किया है, इंश्योरेंस ने कितना आपकी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है, इंश्योरेंस ने कितनी वहाँ पर क्या कहते हैं डिडक्टिबल्स को, पेमेंट्स को, इंश्योरेंसेज, ये जितने भी बेनिफिट्स उस मेंबर के होते हैं वो दे आर गोइंग टू बी डिस्क्राइब्ड इन दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स इन दैट paper. Okay, the EOB serves as summary of the insurance company's assessment of the claim, detailing what was covered, what was paid, and any amounts that might be responsibility of the patients. So as I have discussed, they are going to show all the information regarding the benefits of that member. Okay, कि हाँ भी उसके अंदर कितनी पेमेंट की गई है, कितनी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है, कितनी उसके अंदर एडजस्टमेंट्स की गई हैं. ओके, so this is all about the explanation of benefits. What we have next, it's federal tax ID number. Federal tax ID number क्या होता है? A federal tax identification number, also known as federal employer identification number or EIN. टैक्स आईडी भी कहते हैं इसको, EIN भी कहते हैं, मींस एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. इज़ अ यूनिक 9 डिजिट कोड. मींस ये 9 डिजिट्स का एक यूनिक कोड होता है. ठीक है, इशूड बाय द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज. ठीक है, इंटरनल रेवेन्यू की जो सर्विस होती है वो इसको इशू करती हैं. वाई दे आर गोइंग टू इशू दैट वन? टू आइडेंटिफाई बिजनेसेस, मींस बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड अदर एंटिटीज फॉर टैक्स पर्पसेस. मींस वहाँ पर जितनी भी कंपनीज काम कर रही होती हैं उनको वहाँ की यूएसए की गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक उनको 9 डिजिट का कोड असाइन करती है. ठीक है, सो जब ये 9 डिजिट का कोड आपको असाइन कर दिया जाता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? that they are going to track all your transactions. ठीक है, means they can access all everything regarding the transactions, means for the tax purposes, because ये है कि आपको देख रहे होते हैं कि हाँ भी आपकी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं. means they are going to have the records of your ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस और बिजनेस. मीन्स कोई भी आप वहाँ पर बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको एक बेसिकली वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी जब आप कंपनी बनाते हैं तो SECP से आई गेस उसको रजिस्टर्ड किया जाता है. ठीक है, जब SECP से आप रजिस्टर्ड करवाते हो वहाँ पर आप बताते हो कि हाँ भी मेरे एसेट्स कितने हैं, ठीक है, मैं कितनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, blah blah, means different kind of situations you are going to describe to the SECP. So same goes in the USA as well. For tax purposes they are going to track your organization, your business, or your
other kind of entities. Okay, this number is used to track tax obligations, file tax returns, and conduct various financial transactions. So I have just mentioned, so this is going to, they are going to track your tax identifications, your tax transactions. So this is the federal tax identification number. Okay, who is the guarantor? Means guarantor कौन होता है? A guarantor refers to the individual who is financially responsible for paying the medical bills and expenses incurred by a patient. Means guarantor वो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी सरप्रस्त जिसको कहा जाता है कि हाँ भी आपका सरप्रस्त कौन है, ठीक है, इफ़ यू हैव अ फादर और मदर, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली ये भी हो सकते हैं कि हाँ भी सपोज ये है कि एक फादर है, उसका पास उसने कोई इंश्योरेंस प्लान परचेज किया हुआ है एंड ही इज़ गोइंग टू पे, मीन्स ही इज़ गोइंग टू डू दैट कि हाँ भी वो जब उसका बच्चा बीमार होता है तो वो वहाँ जाकर कोई भी सर्विसेज या हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल करता है, ठीक है, अपने बच्चे के टेस्ट वगैरह करा लेता है, बट ही इज़ मीन्स बेसिकली वो बंदा नहीं ले रहा होता, मीन्स जिसकी इंश्योरेंस प्लान है, बट ही इज़ गोइंग टू पे फॉर दैट, मीन्स स्पेसिफिक अपने पर्सन के लिए, वो अपने जो जिसने मेडिकल सर्विसेज गेन की हैं, ठीक है। सो लाइक ये है कि हम यहाँ पर देखते हैं द गारंटर इज टिपिकली द पर्सन हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द मेडिकल बिल्स आर पेड इवन इफ दे आर नॉट द एक्चुअल पेशेंट रिसीविंग द मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। मीन्स ये है कि उसके बच्चों को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की गई है, बट जो इंश्योरेंस प्लान यूज़ किया जा रहा है वो उसके फादर का यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअल में तो मीन्स ये है कि वो जो बंदा है जिसके पास इंश्योरेंस है, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी क्योर्ड और ही इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड, ओके, बट यह है कि उसका बच्चा था, उसने अपना इंश्योरेंस प्लान मीन्स उसके फादर ने यूज़ किया, सो ही इज़ बीइंग अ गारंटर फॉर दैट particular person who is getting the medical services. Okay, so this is the guarantor. Next what we have, it's health maintenance organization, HMO. means HMO क्या होता है? A health maintenance organization is a type of managed healthcare system that provides medical services and coverage to its members within a defined network of healthcare providers and facilities. means ये एक basically एक network होता है, ठीक है, is a type of a healthcare system that provides medical services and coverage. means काफ़ी सारी coverages provide कराते हैं अपने members को, ठीक है। एक defined network होता है, इनका एक defined network होता है, उसके अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। प्राइमरी केयर फिजिशियन इसके अंदर क्या होता है? मींस ये उसी के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। इन एन HMO मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ प्राइमरी केयर फिजिशियन। मींस इसके अंदर मेंबर्स को कहा जाता है, बेसिकली यहाँ पर एक शॉर्ट रेंज होती है, PPO के अंदर वाइड रेंज होती है प्रोवाइडर्स की, ठीक है। HMO प्लान के अंदर शॉर्ट रेंज ऑफ सेलेक्टिंग प्रोवाइडर्स होता है, मीन्स एक स्पेसिफाइड एक नेटवर्क होता है, आपने जो भी मेंबर होगा वो उन्हीं से ही जाकर ट्रीटमेंट लेगा, ठीक है। अगर वो उससे बाहर जाता है तो उसको ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। खैर प्राइमरी केयर फिजिशियन वो कहते हैं कि हाँ भी आपको एक स्पेसिफिक एक अपना प्राइमरी केयर फिजिशियन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हु इज़ दैट प्राइमरी केयर फिजिशियन? द प्राइमरी केयर फिजिशियन सर्व्स एज द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द मेंबर्स हेल्थ केयर नीड्स, ठीक है। मीन्स जो प्राइमरी केयर आप फिजिशियन सेलेक्ट करोगे वो आपका मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा कि हाँ भी जब भी आपको कोई सर्विस लेनी है, ठीक है, अगर ये है कि आपको बताना है कि हाँ भी मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है, मुझे ये टेस्ट कराना है, तो आपको अपने उस प्राइमरी केयर फिजिशियन को बताना होगा, ठीक है। या फिर जब भी आपकी कोई हेल्थ केयर रिलेटेड कोई भी सिचुएशन होगी तो वो ही इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्पस, ओके। The primary care physician is responsible for coordinating and managing the member's care, including referrals to the specialist when necessary. Means sometimes ऐसा होता है कि हाँ भी कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि हाँ भी वो उनके जो नेटवर्क है उसके अंदर वो कवर नहीं हो रही होती हैं, तो ये जो आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन होता है ही इज़ गोइंग टू रेफ़र यू। मीन्स ये है कि आपको ये रेफ़र करता है किसी स्पेशलिस्ट के पास कि हाँ भी आप उसके पास चले जाओ और उसके पास जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करा लो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड HMO, मीन्स हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। Okay, so what's next? It's preferred provider organization. A preferred provider organization is a type of managed healthcare plan that offers flexibility. Means इसके अंदर काफ़ी flexibility होती है, इसके अंदर means short range नहीं होती for selecting the providers, इसके अंदर wide range होती है in choosing healthcare providers while still providing cost savings and insurance coverages, ठीक है। तो इसके अंदर means ये है कि wide range होती है, आप काफ़ी सारे providers आपके पास आ जाते हैं जिनके से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मीन्स शॉर्ट रेंज नहीं होती, इसके अंदर वाइड नेटवर्क होता है, ठीक है। प्रोवाइडर नेटवर्क, PPOs हैव अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, स्पेशलिस्ट एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज दैट हैव एग्रीड टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड नेगोशिएटेड रेट्स, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि हाँ भी काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हो जाते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क भी बड़ा हो जाता है और उसके अंदर जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो नेगोशिएटेड रेट्स के ऊपर आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रीडम टू चूज़,
One of the primary features of PPOs is a flexibility to see any healthcare provider, including specialist, without requiring a referral from the primary care physician. Means अब HMO के अंदर कोई भी अगर बंदा है उसको अगर किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है जो कि उसके नेटवर्क के अंदर नहीं आ रहा, तो उसको अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से रेफरल लेना पड़ता है। बट इन कंट्रास्ट टू दैट वन, द इन द पीपीओ प्लान, ठीक है, आपको रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यू आर गोइंग डायरेक्टली टू द स्पेशलिस्ट। ओके, जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने जाके अपना चेकअप वगैरह करा सकते हैं, टेस्ट वगैरह करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। There is no need to get the referral from your PCP, primary care physician. This is the difference between these two. There is a vast other differences as well, but these are the primary ones. Okay. So what's next? It's a self-pay condition. Means self-pay condition क्या होती है? Self-pay refers to the practice of paying for healthcare services out of one's own pocket without the involvement of the health insurance or the third party payers. Means इसके अंदर self pay means as name से जाहिर है कि हमें self pay means खुद ही पे करना है। अगर आप कोई भी सर्विसेज मीन्स प्रोवाइड वो आप लेते हैं किसी भी फैसिलिटी से या किसी भी डॉक्टर से, किसी भी रेंडरिंग प्रोवाइडर से, देन यू आर गोइंग टू पे दोज ऑल दोज बिल्स फ्रॉम योर ओन पॉकेट। मीन्स आप अपनी जेब से ही उन सारी सर्विसेज को पे करेंगे। एज सेल्फ पे पेशेंट्स, इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द फुल अमाउंट चार्ज बाय द हेल्थ प्रोवाइडर फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड। दिस includes all costs associated with a visit such as consultation fees, tests, treatments and procedures। मीन जितनी भी चीज़ें उस चीज़ के अंदर आ रही होती हैं, उस ट्रीटमेंट के अंदर चेकिंग फ़ी हो गई, ठीक है, कोई टेस्ट किया है उसकी हो गई, कोई कंसल्टेशन फ़ी हो गई, ठीक है, कोई मीन्स ये है कि उसका क्या क्या कंसल्टेशन फ़ीस, टेस्ट, ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, मीन्स कोई भी सर्विस ली गई है, देन द सोल पर्सन हु इज़ गोइंग टू बेयर ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द पर्सन हु गेट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ओके, so this is the self-pay. And what is social security number? Social security number, you can say that it is the identification number, CNIC number जैसे हमारे पास होता है। So same goes with that। यूएसए के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी वहाँ पे मीन्स ये है कि उनकी नेशन है, उन सबको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे ये है कि उस बंदे की पहचान होती है। लाइक जैसे हमारे यहाँ आईडी कार्ड होते हैं, ठीक है, सीएनआईसी के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर होता है। ठीक है, अ सोशल सिक्योरिटी नंबर इज़ अ यूनिक 9 डिजिट कोड। ये भी 9 डिजिट कोड होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू यूएस सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स एंड सम नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स। मीन्स वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनके अंदर मीन्स परमानेंट रेजिडेंट्स जो होते हैं, नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा उसके जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको 9 डिजिट का कोड बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इससे उनकी सारा उनके पास डाटा होता है कि हाँ भी इसकी फैमिली के अंदर कौन कौन रहता है, इसका इसका नाम क्या है, इसके फादर का नाम हो गया, इसके अलावा और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो रही होती हैं। ओके, the primary purpose of the SSN is to track an individual's earnings and work history for social security benefits, but it is also used for various other purposes including tax reporting, identification and financial transactions as well. So means इस ये है कि काफ़ी सारी उस बंदे की जो ये जो सिटीजन्स को वहाँ पर होते हैं उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ट्रैक की जा रही होती हैं, उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या हो, उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे टैक्स रिपोर्टिंग होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस उसकी चेक की जा रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं कि हाँ भी इस तरीके से जैसे सेम विद अस मीन्स हम जब जाते हैं नादरा के दफ्तर के अंदर तो वहाँ जाकर अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे तो वहाँ हमारी सारी फैमिली हिस्ट्री आ जाती है कि हम हमारे कितने रिलेटिव्स हैं, कितने बहन भाई हैं वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पर अवेलेबल होती है। सो दैट इज़ द सोशल सिक्योरिटी नंबर। What comes next? It's third party payer. It refers to an entity that is not the patient or the healthcare provider but is responsible for reimbursing or paying for healthcare services provided to the patient. ठीक है, in the context of the healthcare and medical billing, third party payers are typically हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। मीन्स थर्ड पार्टी पेयर बेसिकली वही होता है, ठीक है, कि हाँ भी जो इंस्टेड ऑफ यू दे आर गोइंग टू पे फॉर योर पे फॉर द सर्विसेज विच आर यू गोइंग टू गेट फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मीन्स आप कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कोई सर्विस लेते हो, ठीक है, तो दे दिस थर्ड पार्टी इज गोइंग टू पे फॉर योर बिल्स। ये कौन होती है? मीन्स बिलिंग कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक है कि मेडिकेयर, मेडिकेड, ठीक है, और इसके अलावा बिलिंग कंपनीज में जितनी भी बिलिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली, नॉट द बिलिंग कंपनीज। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज मीन्स आपने कोई भी प्लान लिया हुआ है, ठीक है, कमर्शियल प्लान और प्राइवेट प्लान, दे आर गोइंग टू पे फॉर योर बिल्स।
Private health insurance companies, they offer various types of health insurance plans such as health maintenance organizations, preferred provider organizations, and high deductible health plans that provide coverage for medical services according to the terms of insurance policy. ठीक है, तो मीन्स इसके अंदर वही है कि हाँ भी प्राइवेट कंपनीज जितनी भी होती हैं वो आपके थर्ड पार्टी पेयर होते हैं. ठीक है, दे आर गोइंग टू पे फॉर द सर्विसेज विच यू आर गोइंग टू गेट. ओके, इसके अंदर एच एम प्लान्स आ जाते हैं, पीपीओ प्लान्स आ जाते हैं. एच एम प्लान के जैसे अंदर मैंने बताया कि हाँ भी उसके अंदर लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट इन द पीपीओ प्लान देयर इज़ अ लार्ज फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा होती है कि हाँ भी उसके अंदर आपको रेफर भी नहीं लेना पड़ता अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से. ओके, so this is the third party peer. Okay, so this was all about the terminologies. In this lecture there are some other terminologies as well which are also a little bit crucial, but these were, I guess, the most crucial. Those can be asked while you are in an interview. Okay, so if you guys have any kind of a confusion, any kind of a question, then you guys can ask me on the YouTube comments, then you can text me in the WhatsApp, and there are also Zoom sessions which are going to be conducted on every Sunday in a week. Okay, so you guys can also ask questions over there as well. Thank you so much for watching me again. So inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and have a nice rest of the day. Take care. Allah Hafiz.